morning student, this is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to do a new topic, that is clauses and complex sentence. Okay, so first of all we should know about the clauses. Okay, so what are the clauses? Clauses are the parts of a sentence. Okay, a clause is a part of a sentence and it is of two types. It is of two types. First is independent or main clause. First clause is independent or main clause and second is dependent or subordinate clause. Okay, as its name tells us that independent means free. Independent means free. For what? For what it is free? It is free for its meaning. Means it does not depend on other sentence or other clause for its meaning. Okay, so यदि हम इसको पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज को, तो उसका मीनिंग हमें वहाँ पर क्लियर हो जाता है. हमें मीन्स दूसरे क्लोज को हमें देखना नहीं पड़ता. सो दैट इज योर independent clause and we can call it main clause also. Okay, then second is our dependent. Dependent means, yes, dependent on someone to take support of something. So it takes support of what? It takes support of independent clause. Okay, ये clause कैसा है? Dependent है. इसको यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा है, क्या है, या मीन्स मीनिंग इसका क्लियर हमें नहीं होता और उसके मीनिंग के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर. ओके, एंड इट्स सेकेंड नेम इज subordinate clause. Subordinate clause. Okay, so now we see, I think it's clear to you, and after that we have to do complex sentence in this lesson. Okay, compound sentence we have already done in my previous video. Yes, compound sentence. थोड़ा सा मैं आपको एक प्रीव्यू यहाँ पर दे देती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस आर द सेंटेंस दैट हैव ओनली इंडिपेंडेंट क्लोजेस and that are joined with the coordinating conjunctions. Okay, that joined with the coordinating conjunctions. Okay, and compound sentence has independent clauses only. केवल independent clause वहाँ पर होगा और जो fan boys मैंने आपको बताए थे, ठीक है, that conjunction and that joined with that conjunctions. Okay, और complex clause क्या है? Complex clause means combination of these two. Combination of these two means a sentence that has independent clause as well as dependent clause, जिसमें दोनों clauses हैं and joined with and connect with which type of conjunction? Which type of conjunction? Connect with the subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. So ये subordinating conjunctions के साथ जुड़ा होगा. ओके, अभी इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने किया है दैट इज कंजंक्शंस. 3 वीडियोस हैं उसकी कंजंक्शंस की. नहीं समझ में आया है देन गो थ्रू दैट. ओके, सो यहाँ पर हम इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हमने बहुत डिटेल में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ा है. ठीक है, देन वी कम टू दीज सेंटेंसेस. यस, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. द गर्ल हु वाज फ्रॉम दिल्ली won the crown. Okay, so you can see the two clauses here. Now the second, a social activist who works for spreading literacy has got an award. Okay, I was surprised to hear that their team had won the tournament.
So these are the three sentences, and in all the three sentences you can see two clauses. Where are these two clauses? Now see, the girl, which girl, कौन सी girl की बात हो रही है? हमने कहा the girl, which girl? Yes, who was from Delhi. So यहाँ से लेकर यहाँ तक who was from Delhi. So this is your dependent clause. This is your dependent clause. Okay, ये आपका dependent clause. And the girl won the crown. The girl won the crown. ये आपका है, यदि क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज की प्लेसिंग ऐसे भी होती है कि हम बीच में भी डाल देते हैं, या सपोज आप ये बताते हो कि यस कि आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज अनवेल. सो यहाँ पर भी आपका मीन्स प्लेसिंग बीच में नहीं है इसकी कंजक्शन की, बट वो लास्ट में हो गई. आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड बिकॉज इज योर कंजक्शन, एंड बिकॉज आई वॉज अनवेल, ये बिकॉज से लेकर और अनवेल तक ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लोज. ओके, और डिपेंडेंट क्लोज ऑलवेज स्टार्ट्स विद सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन. हमेशा आपका डिपेंडेंट क्लोज है वो एक सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना है. और उसकी पहचान भी ऐसे ही है क्योंकि आपके सिलेबस में भी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सुबॉर्डिनेट क्लोज. यस, सो वो आपको पहचानना सीखना पड़ेगा. तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है ये कि जहाँ से आपका कंजक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से आपका डिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट होता है. ठीक है. सो और उसके बाद अब थोड़ा सा इसको पढ़ के देख लें, थोड़ा सा मीनिंग की तरफ जाएं कि क्या मीनिंग दे रहा है. सो द गर्ल won the crown, ये आपका हो गया गर्ल won the crown, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज. ठीक है. और मेन क्लोज एमसीक्यू लिख सकते हैं इसको, मेन क्लोज, और ये आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज. एक ही बात है, आप कुछ भी इसको मेंशन करें. देन वी सी द नेक्स्ट वन, अ सोशल एक्टिविस्ट. एक सोशल एक्टिविस्ट है हु. अब देखिए हु आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है, योर डिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यस, हु वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग लिटरेसी. हु वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग लिटरेसी. सो यहाँ तक देखिए, उसके बाद है हैज. मीन्स यदि आप ये डिपेंडेंट क्लोज बीच में से हटा भी देते हैं तो भी आपका मीनिंग है अ सोशल एक्टिविस्ट हैज गॉट एन अवार्ड. यस, इट्स योर इंडिपेंडेंट क्लोज. सो डिपेंडेंट क्लोज आपका हो गया हु वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग लिटरेसी, जो कि लिटरेसी के लिए, स्प्रेड के लिए काम करता है. तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लोज. एंड अ सोशल एक्टिविस्ट हैज गॉट एन अवार्ड, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज. क्लियर. देन आई वॉज सरप्राइज टू हियर दैट. ये जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, उसी तरह से है ये. आई वॉज सरप्राइज टू हियर, आई वॉज सरप्राइज टू हियर, कि मैं सुनकर सरप्राइज हो गई. ओके. सो ओके, यस, इट्स योर इंडिपेंडेंट क्लोज, इट्स योर इंडिपेंडेंट क्लोज. एंड एज आई टोल्ड यू दैट योर subordinate clause or dependent clause always starts with yes, right, starts with subordinating conjunction. So subordinating that is your subordinating conjunction. याद है ना? Yes, subordinating conjunction. So that their team had won the tournament. ये आपका हो गया सारा, यहाँ तक आपका हो गया डिपेंडेंट क्लोज. ओके, अंडरस्टैंड. सो इस तरह के और क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमने सपोज हमने यहाँ पर आपको हमने ये दैट नहीं दिया, ठीक है, और हमने अलग अलग आपको ये टू सेंटेंस दे दिए कि आई वॉज सरप्राइज टू हियर
और सेकेंड हमने दे दिया देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको कंजक्शन देखनी है सबसे पहले कि कौन सी कंजक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर उस कंजक्शन को यूज करके यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लाइक इसमें है, हम आपसे पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द क्लोज, बताओ यहाँ पर कौन सा मेन क्लोज है और कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, सो दैट seems easy for you now. So that in that condition you have to write down your main clause is the girl won the crown, and dependent clause who won from Delhi. Okay, who was from Delhi, sorry. So this is your dependent clause. Okay, so इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और कई बार हम ऐसे भी दे देते हैं जैसे ये बीच में है, हमने सेंटेंस आपको लिख कर दे दिया, बट हमने कंजक्शन की प्लेसिंग नहीं दी। ठीक है, कंजक्शन हमने उसमें नहीं लिखा, हमने आपको ब्रैकेट में कंजक्शन दे दिया कि हु है भाई यहाँ पर, अब आप इस हु को फिट करो, और यहाँ पर आपको ये हु नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हु नहीं मिलेगा, बट हमने आपको हु यहाँ नीचे दे दिया, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कहाँ पर मुझे हु लगाना है, कहाँ पे कंजक्शन मुझे यूज़ करनी है। ओके, देन एंड तरीका आपको बता दिया है। नाउ इट सीम्स इजी टू यू। सो हु हमेशा कंजक्शन में भी आपको बताया कि who always we use for the person. ओके, सो हु है, इट मीन्स किसी पर्सन के बारे में बात हुई है। पर्सन कौन है यहाँ पे, सोशल एक्टिविस्ट, तो इट मीन्स इनके बारे में ही बात हो रही है। तो यस, यहाँ एक्टिविस्ट के बाद, पर्सन के बाद यहाँ पे हम हु प्लेस करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। नाउ यस, you have to do your worksheets. Okay, now you read these sentences. Thank you.